اگر آپ کے بچے آج غیر حاضر ہیں، آپ کو خبر ہو سکتا ہے جائے بھی نہیں بھی جائے گی، کل جو ہے غیر حاضر ہیں، ہو سکتا ہے خبر جائے نہیں بھی جائے گی، 3 دن اگر کنٹینیو غیر حاضر ہوگی تو تیسرے دن آپ کو فون جائے گا، ٹھیک ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ تیسرے دن استاذ ہم کو رپورٹ پیش کریں گے۔ چوتھے دن بھی اگر آپ کے بچے غیر حاضر ہیں تو پھر چوتھے دن استاذ ہم کو رپورٹ پیش نہیں کریں گے۔ 5ویں دن پھر غیر حاضر ہے تو پھر استاذ ہم کو رپورٹ کریں گے، آپ کو فون جائے گا۔ لیکن اب جو اس 5 دن غیر حاضری میں آپ کے بچے پڑھے ہیں اس کی ذمہ داری مدرسہ نہیں اٹھائے گا۔ آپ کا بچہ فیل ہو پاس ہو سے ہمیں کوئی مطلب نہیں، یہ سن لیجیے۔ زیادہ سے زیادہ آپ کیا کیجیے گا، 4 جگہ شکایت کر لیجیے گا میری کہ بھائی پڑھائی نہیں ہوتی ہے، 5ویں الٹا شکایت کر کے آپ اپنے بچے کو ہٹا لیجیے گا۔ تو میں شکایت سننے کے لیے بھی تیار ہوں، اور اگر آپ بچے کو ہٹائیں گے تو اس کے لیے بھی تیار ہے، ٹھیک ہے؟ تو بچے کی غیر حاضری نہیں، بلکہ میں شیڈول بنانے جا رہا ہوں۔ دیکھیے، موت ہے، شادی ہے، بیماری ہے، اس میں تو بچے چھٹی نہیں لیتے ہیں، لیتے ہیں یا نہیں لیتے ہیں؟ لیکن اسپیشلی کہ آج اماں کو کام ہے، ابا جا رہے دھان اور اپنے بچے کو چھٹی دے دو، کھانا بنائیں گے۔ بھائی وہ ماں باپ پہلے بنا لے، ایسا ہوتا ہے ماں باپ چھٹی لے لیا ہے جھوٹ بول کر کے ہم سے، بچہ بیمار ہے، میں دیکھ رہا ہوں سڑک پہ کام کر رہا ہے، جی ہم سے لیا ہے، تو بھائی اس سب کا وشواس ختم کرنے جائیں گے۔ چلیے اب آخری 2 بلکہ ایک ایجنڈا ہے جو وہی کل ملا کے خرچ پہ جا کر کے رکے گا کہ مزید اساتذہ کی بحالی۔ اس کے لیے آپ لوگوں کی کیا رائے، کیا کیا جائے؟ خاص طور سے اس کے لیے ہم عربی کے گارجین سے مخاطب ہیں، نیچے کلاس میں تو بچے رہتے ہیں، عربی والے سے مخاطب ہیں، جس میں آپ سے بھی مخاطب ہے، آپ سے بھی مخاطب ہے۔ اس کے لیے کیا کیا جائے؟ ظاہر بات ہے اگر 12 ہے، 300 روپے ہے تو 3600 روپے آیا، ایک استاذ پہ کم سے کم ہمارا جو ہے 12، 14، 15 ہزار کا خرچ پڑتا ہے ایک استاذ پہ۔ ہر مدرسے میں 3 وقت کھانا ملتا ہے، ہمارے یہاں 3 وقت کھانا، 1 وقت الگ سے ناشتہ ملتا ہے، 4 وقت ہم دیتے ہیں۔ اگر چنا چورا ہی ہم نے ہلکا ناشتہ دیا تو 10 روپے سے کم کا تو نہیں آئے گا۔ ایک بسکٹ اور ایک چائے بھی دیا، گھٹیا چائے پانی والی، تو بھی 5 روپے سے کم کا نہیں آئے گا۔ تو یہ 300، 350، 400 روپے تو ہمارا ہلکے ناشتے کا پلس 3 وقت کا کھانا ہے معیار، پلس اس کی تنخواہ ہے۔ آپ نے سنا ہے کہ وقت پہ ادائیگی ہوگی، اس کے لیے کیا مشورہ ہے؟ جس گارجن کے یہاں پیسہ اس کو کہیے، اس کو اسپیشلی فون کیجیے۔ نہیں تو ہے نا، لیکن جو عربی میں بچے پڑھتے ہیں ان کو فیس بڑھایا یہ جائے۔ صرف عربی والوں کے لیے اسپیشلی میں پوچھ رہا ہوں کہ یہ جو 39 بچے ہیں، ہم 40 مان لیں، اس 39 بچوں کے لیے 3 اساتذہ کی ضرورت ہے کم از کم، ہاں جو ابھی ہمارے پاس ہم لگا کے ٹائم دو، لگی ہمارے، اور یہ اساتذہ مہنگے ہیں، کم سے کم ہم کو 10-12 ہزار کا تنخواہ پہ خرچ پڑتا ہے، 10 ہزار تو کم سے کم تنخواہ ہی مان لیجیے، پھر کھانا خرچہ ہے ان کا، تو 13 سے 14 ہزار ایک استاذ پہ خرچہ ہے۔ جو تینوں کلاس کا لوگ ملا دے گا تنخواہ پیسہ تو ایک استاذ کی تنخواہ ہوگی۔ اس کے لیے میں کیا کروں؟ جو میں نے ذمہ داری دیا کہ اگر آپ لوگ چاہیں کہ بڑھانا ہے تو آپ لوگ مشورہ دیں گے، اور اگر نہیں تو میری طرف سے کوئی پریشانی نہیں ہے، ہمارے طرف سے صرف ایک پریشانی کے ٹائم پہ جمع ہو جائے، اگر دیں گے تو سب کا بڑھ جائے گا۔ یا کچھ لوگ ایسے بھی ہمارے سماج میں رہنے چاہیے کہ بھائی سب کیوں دے گا، ہم دیں گے، ہماری مرضی ہے، ایسے بھی ہونے چاہیے۔ سب کی حیثیت اللہ نے الگ الگ بنائی، یہ تو حوصلے کی بات ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم 3-4 ہزار والے بچوں کو 300 روپے میں پڑھا رہے ہیں، جی آپ بھی شامل ہیں اس میں۔ بہرکیف اس میں جو ہے نا انشاءاللہ اس بات پہ ہم لوگ بعد میں بات کر لیں گے۔ یہ ہماری جو ہے میٹنگ کا ایجنڈا تھا جو آج ہم نے آپ لوگوں سے کہا۔ اب آپ لوگوں کو 5 منٹ کا وقت ہے، اس لیے کہ 10 بجنے میں بھی 3-4 منٹ وقت ہے، ناشتہ بھی آ گیا، میٹنگ ختم کریں گے، 10 بجے تک کے لیے بلایا تھا۔ 4-5 منٹ میں آپ لوگ بھی کچھ ہمارے سامنے بولیں، آپ لوگ بھی کچھ بولیں، جو ہم لوگ ابھی بات کر لیں گے انشاءاللہ۔ آپ لوگ سوچیں، اگر نہیں تو ہمارے مس کو بتائیے، ہماری مس آ کے ہم کو بولے گا، ہم لوگ سامنے رکھیں گے تاکہ بات واضح بنے۔ حالانکہ 5 تاریخ والی بات آ ہی گئی ہے، گاڑی والے بچے کے گارجین غور سے سنیے، جو بچے گاڑی والے ہیں، گاڑی چل رہی ہے، پچھلے سال نئی گاڑی لی گئی، اس سال اور بھی گاڑی بڑھائی جا رہی ہے۔ گاڑی کا معاملہ یہ ہے ہمارے کو کہ 30 تاریخ کو کم از کم 10,000 روپیہ گاڑی کو دینا ہے۔ اگر ہم 30 تاریخ کو 10,000 روپیہ، عرفان بھائی اب آپ کے بچے گاڑی سے ہٹ گئے تو ایسا نہیں کہ آپ نہیں سنیے، سننا ہے، تو
तारीख को हम गाड़ी वाले को 10,000 रुपया देना है। अगर हम 30 तारीख को 10,000 नहीं दें तो वो गरीब आदमी हमसे तो नहीं लेता है एक्स्ट्रा, लेकिन उसको 500 रुपया जुर्माना लगता है। 500 रुपया उसको जुर्माना लगता है। तो क्या ये मुनासिब है कि मेरी वजह से उसको 500 जुर्माना लगे? है मुनासिब? जबकि अभी आप देख रहे होंगे कि 2 गाड़ी चलती है, 4 चक्कर चलती है, और अब 5-6 गाड़ी की ज़रूरत है हमें। मिसाल के तौर पे नहर है, नहर में डबल गाड़ी जाना है, बच्चे बहुत कोच कचा के आ रहे हैं, माँ बाप को कहा कि जैसे तैसे आने दो मीटिंग तक, मीटिंग में हम लोग तय करेंगे। अगर हमको गाड़ी वाले का बच्चा टाइम पे आ गया, 30 तारीख तक पैसा, हमने 5 तारीख का वक्त लिया है, 5 तारीख तक आ गया, हम डबल गाड़ी कर देंगे। नहीं आएगा तो भाई एक ही गाड़ी चलेगी। हम खर्च कैसे बढ़ा दें? जबकि आना रुका हुआ हो तो मैं खर्च कैसे बढ़ा दूँ या नहीं? क्यों? इसलिए कि एक ही गाड़ी आएगी तो कम से कम डीजल तो मेरा एक ही जाएगा ना भाई। 4 बच्चे घट जाएंगे, इससे हमको नुकसान नहीं होगा, लेकिन डबल गाड़ी जाएगी तो इससे नुकसान हो जाएगा। गाड़ी साहब यहाँ पे बैठे हुए इस मदरसे के सबसे पुराने उस्ताद हैं। रैयाम में गाड़ी चलती है, ये साथ ही रैयाम के हैं, बल्कि रैयाम में एंट्री हुई है इनके घर से हमारा। रैयाम में सबसे पहली मरतबा इन्हीं के घर में दाखिल, जो इनका शुक्रिया। और इनकी भी बच्ची को मलमल में दाखिल कराया था। पूछिए कि मलमल में जब पढ़ के आया दोबारा वही क्लास पढ़ना पड़ा कि नहीं? क्या कर गलत बोल रहा हूँ? हमारे भी, जबकि इनकी बच्ची इतनी तेज है कि फर्स्ट से सेकंड कभी नहीं आएगी, फर्स्ट से सेकंड कभी नहीं आएगी। और इन्हीं लोगों का प्रेशर था कि जरा इतना हॉस्टल देखा जाए। बाहर क्या, चलिए, तो अगर ये चीज़ें आ जाती है तो उस गरीब आदमी का 500 का नुकसान नहीं होगा, और हम डबल गाड़ी का यहाँ इंतजाम करेंगे। रैयाम के लिए बिल्कुल अलग गाड़ी का इंतजाम करेंगे, तो 3 गाड़ी हो गई। बी नगर के लिए अलग इंतजाम करेंगे। इधर जो है गाड़ी, जो इधर 2-2, 4-4 बच्चे हैं, जबकि तुलसी पट्टी जाएगी तो नुकसान, यानी हर गांव में से 2 ही 3-4 बच्चे हैं। जाहिर सी बात है, रनिंग तो पूरी है। और एक गांव में अगर 2 मरतबा गाड़ी न जाए तो गाड़ी नुकसान। ये सबका खुलासा है। एक गांव में एक ड्राइवर के थ्रू 2 चक्कर गाड़ी नहीं जाता है तो गाड़ी को नुकसान होता है। मदरसे पे जो कर्ज है वो असल गाड़ी की वजह से कर्ज है। तो तुलसी पट्टी वगैरह के लिए एक गाड़ी अलग से इंतजाम करेंगे, तो ये 4-5 गाड़ी चाहिए। तो इंशाल्लाह इस पर हम लोग अमल करें और कोशिश करें। दूसरी बात की जो आखिरी तारीख है कि भर के 4 तारीख तक आपको जमा करना है, 5वीं तारीख आखिरी रहेगी फीस को जमा करने की। अब 5 को जमा नहीं हो पाया, इसके लिए आप मशवरा दीजिए मैं क्या करूँ? ऐसे तो बोला तो चलेगा। जी, अगर पैसा देखिए, आप लोग जितने गार्जियन आए जो तय करेंगे मैं लिखूंगा, और उससे मैं आगे पीछे नहीं हटूंगा। मैं तो कहता ना, मैं अगर आगे हटूँ मैं इंसान हूँ। मैं तो एक ऐसा आदमी हूँ कि अगर हमारे गांव में झगड़ा होता है, मैं पंचायत में जाता हूँ तो मैं कहता हूँ भाई मैं ही पाँव पकड़ लेता हूँ, लेकिन तुम लोग मान जाओ। और आप गार्जियन से ताल्लुक से नहीं, अगर हमारी तरफ से, हमारे असातिज़ा की तरफ से, हमारे बच्चों की तरफ से कोई कमी आएगी, 24 घंटे में पाँव पकड़ के आपका माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ। इसलिए कि मैं आपसे माफ़ी मांगूंगा, मैं जानता हूँ मैं नीचे नहीं हूँ जी। और दुनिया का मामला बहरकैफ दुनिया के अंदर ही हमको मिटा करके मरना है। ना आपका कर्ज लेकर हम मरे दुनिया से, ना आप मेरा कर्ज लेकर। 5 तारीख का तो लास्ट डेट हुआ। हाँ, लास्ट डेट। और लड़की वाला जो चार्ज जो बोले बात सही है, लेकिन 10 तारीख तक इसका टाइम दिया जाएगा हर इंसान को 5 को। मैंने एक मशवरा डाला है ना, मदरसा में 10 तक माना कहने को तो 10 तारीख, 1 महीने 2 महीना करते करते किसी क्या करे 5,000, किसी क्या 7,000 हो गया है। ये सुनिए, ये रजिस्टर है हमारे पास। मैंने कहा ना मैं पुरानी रजिस्टर लेके आया हूँ। 3 साल का बाद क्या होगा? देखिए, सबसे पहली बात है, जैसे आप 1 महीना छोड़ दिए, 2 महीना छोड़ दिए, इसका नतीजा किसी का 5 महीना का हो गया, किसी का 10 महीना हो गया। एक ही इसका सबसे अच्छा मशवरा मेरी निजी राय है। दीजिए, राय कबूल की तो जाएगी। आपने 5 तारीख का टाइम रखा है, 4 तारीख तक इंतजार है तनख्वाह का। 5 तारीख को उस बच्चे को बाज़ाब्ता एक लेटर लिख करके दें, आखिर क्या वजह है कि 4 तारीख तक पैसा नहीं आया।
तो 6 तारीख को जब भी बच्चा आए तो उस पर बच्चा रिजल्ट लिख करके उसका गार्जियन दे बच्चे उसी लेटर पे। ये अच्छी राय हमको लग रही है। हाँ, क्या रीजन है? यदि गार्जियन अगर एक्टिव होगा तो कुछ न कुछ लिख कर देगा। जी जी कि चलो भाई पैसे अभी नहीं है, 2 रोज में दे रहे हैं या परसों दे रहे हैं। और जो गार्जियन यदि एक्टिव नहीं है तो 7 तारीख को बच्चे को कह देना बाबू कल से नहीं आना। इससे क्या होगा, आपका चल एक बच्चा ना चला जाएगा, महीना जो 1 महीना का रुका हुआ दूसरा महीना नहीं ना रुकेगा। तो 5-6 महीने बाद ऐसे ही चला जाता है। ऐसे भी चला जा रहा है, तो जब 6 महीना का लेकर के जा रहा है तो 1 ही महीना का लेकर जाए। तो ये एक चलिए निजी राय आपकी है। राय बहुत अच्छी है। हाँ, और आप लोग भी राय दें, आप लोग भी राय दें। अलबत्ता एक राय मेरे भी जहन में आ रही है, इस ताल्लुक से जो अल्लाह ने भी जहन में डाला। आप लोगों को मालूम होगा कि मैं एक बिल काट के देता हूँ, लोकल बिल, कागज वाला पहुँचता है, और फिर यही लोकल बिल मैं व्हाट्सएप पे भी डालता हूँ, पर्सनल पे डालते हैं, लोग को पहुँचता है। तो मैं 1 तारीख को बढ़ के तो सबको यानी 30 तक सबको बिल चला जाएगा, सबके हाथ में चला गया। 1 से लेकर 4-5 तारीख तक तो आपको जमा करना है। ये जो 4 तारीख मैं कह रहा हूँ आपको जमा करना है, इसमें बल्कि आप ना जमा करें, 5 तारीख को ही जमा करें, ताकि हम 2-4 घंटा उसी के लिए निकालें। क्या रहा है, ताकि ये 4 दिन भी मेरा नुकसान न हो। अब मेरा नहीं नुकसान बच्चों का है ना। तो 5 तारीख को उसी बिल के साथ बच्चों को फीस जमा करना है। इसके अंदर एक तहजीब वाली बात बता रहा हूँ, जो मैं आज से 2 साल पहले कहा था, बीच में मैंने छोड़ दिया, कुछ लोगों ने अमल किया। होता ये है कि हम जो बच्चों के हाथ फीस भेजते हैं, ये अच्छे माशरे के काम नहीं है, न ये अच्छे माशरे का काम है, न अच्छे माँ बाप का काम। बच्चों को ये नहीं लगना चाहिए कि मैं दे के पढ़ रहा हूँ, ये नहीं लगना चाहिए, ये दे के नहीं लगना चाहिए। क्या लगना चाहिए, सारे लोगों के पास मेरा राब्ता है, सारे लोगों के पास, जैसे मैंने आज लिफाफा भेजे, लिफाफा बचा के रखिए। आप बच्चों के हाथ लिफाफा भेजिए, हमको फोन कीजिए, भाई वहाँ लिफाफा वसूल कर लीजिए, हो गया बात खत्म। बिल आपको उसके अंदर है। ये अच्छे माशरे के लिए, और सब चाहता अच्छा माशरा, और हम लोग करेंगे इंशाल्लाह पूरे इलाका बदलेगा, माहौल बदलेगा। ये ना देखें कि लोग क्या कर रहा है। मैंने औरतों के ताल्लुक से कहा था, नेपाल में हमारे रिश्तेदार लोग लड़कियों का मदरसा चला रहे हैं। मैं नेपाल गया 2 साल पहले, आपको सुन के ताज्जुब होगा, 5 साल की लड़की से लेकर 50 साल की बूढ़ी तक को मैंने बगैर लपेटे हुए हिजाब के किसी को नहीं देखा। ये चीज मैंने कहा था एक मीटिंग के अंदर, लेकिन आज तक वो चीज़ हमको नजर नहीं, हमारे भी घर में नजर नहीं आई। ये अफसोस की बात है। अगर हम माँ हिजाब लपेटेंगे तो बेटी हिजाब, माँ नकाब पहन करके भगवतीपुर में आलू बैगन खरीदने जाएगी तो बेटी भी खरीदने जाएगी। हमारी बच्चियां यहाँ नकाब लगा के आते हैं, अभी भी 2-4 बच्चों को बुलाते हैं, जबकि ये होना चाहिए कि यहाँ पे अगर नकाब किया जाए तो चलेगा। क्यों, यहाँ तो रोजाना 5 घंटे के लिए आती हो, तुम शादी में जाती हो, बाजार में जाती हो, वहाँ पर्दा करके जाओ। यहाँ तो भाई तुम नकाब में रहो या बगैर हिजाब पे रहो, 5 घंटा बैठना है मेरे साथ, हमारे साथ तुमको पढ़ना है, बातें करनी है। लेकिन बाजार में होना तो ये चाहिए था कि बाजार में सैकड़ों लोग आपके चेहरे को देख रहे हैं, वहाँ पे आपका चेहरा ढका होना चाहिए, या नहीं होना चाहिए। तो वहाँ हमारी लड़कियां बगैर हिजाब के जाती है। इसी बीच में एक बच्चियों की तारीफ भी है, एक बच्ची तने तना कोई लग जाती थी, मैंने कहा बेटा तुम नकाब लगा के जाओ और हिजाब लगा के जाओ, और अगर तुमको कोई उस्ताद टच करे तो मैं तालीमी विभाग का जिला सेक्रेटरी हूँ अभी जो हमारी हुकूमत है उसका। मैंने कहा था ना, मैं किसी भी स्कूल में जा करके कुछ भी कर सकता हूँ, और असातिज़ा हमारे सामने एक पाँव पे खड़े होंगे। मैं ब्लॉक या गाँव लेवल का सेक्रेटरी हूँ, जिला लेवल का सेक्रेटरी, और अल्हम्दुलिल्लाह मौजूदा टर्म में हमारी सरकार है, गरचे वो बीजेपी से है, वो अलग बात है। तो मैंने कहा कि तुमको अगर कोई उस्ताद टच करे, तुम्हारा काम है या तो रोते हुए चले आना या किसी से कॉल करना होगा। मैं 2 मिनट में मदरसा स्कूल पहुँचूंगा। आपको सुनिए, ताज्जुब कीजिए और अपना सर पीटिए कि गैर मुस्लिम टीचर ने, किसी ने उसको टच नहीं किया, लेकिन मुसलमान टीचर ने कहा कि मुँह हाथ खोल, ये सर पटकिया मर जाइए। ये गैर मुस्लिम टीचर ने कहीं नहीं कहा कि तुम नकाब उतार दो, हिजाब उतार दो, दुपट्टा उतार दो, और मुस्लिम टीचर ने कहा ये सब लगा के आती है। वो बच्ची भी सुन रही है, यहाँ बैठी हुई है, और उसके बाद भी सुन रहे हैं यहाँ पर। तो क्या ये माहौल दीजिएगा आप लोग? और अगर यही माहौल दे रहे हैं तो कम से कम इस मदरसे में पढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। कोई फायदा? हम यहाँ कितना देर में तोता मैना बनाएंगे उसको? माहौल तो आपको घर से देना है। बच्चे अगर 6 घंटे हमारे पास हैं तो 1/3 है, 2-3 तिहाई तो आपके पास है, यानी 2-3 तिहाई आपके पास है। तो ये माहौल पैदा कीजिए।
मैं अपने माँ बहनों से भी कहूँगा बगैर हिजाब बगैर नकाब के बाहर ना जाए। आपने सुना होगा मुस्कान लड़की को कि जिन्होंने दंगाइयों का मुकाबला किया, पूरी दुनिया के अंदर आज मुस्कान लोग नाम लेके मुस्कुराता है। कई जगह के हमारे बड़े बड़े छोटे छोटे जलसे की तकरीर में मैंने कहा है, जैसे आज भी कह रहा हूँ, हमारी बच्चियों के अंदर भी हौसला होना चाहिए कि तुम स्कूल जाओ, अगर कोई तुम्हें टच करे तो हाथ काट के आना, तुम हाथ कटवा के मत आना। ये हौसला दीजिए बच्चों को। अगर कोई तुम्हारे तो आँख दिखाए, आँख निकाल के आना। तुम ये मत करना कि मुसलमान के बच्चे गर्दन झुका देना, मार खा के आना, ऐसा नहीं। तहजीब अपनी जगह है, लेकिन मुकाबला करना सिखाइए, जुर्रत सिखाइए। आज ना हमारा नौजवान बेटा बचा हुआ है ना बेटी बची हुई है। हमारा नौजवान भी कुल्हाड़ी से काट करके मारा गया है कि नहीं मारा गया है? पत्थरों से सर को कुचल करके मारा गया है कि नहीं मारा गया है? डंडों से पीट पीट करके हमारा बेटा हमारा भाई मार दिया गया है कि नहीं मार दिया गया है? हमारी बेटियों को नंगा पूरा कपड़ा उतार करके सड़कों पे घुमाया गया कि नहीं घुमाया गया है? ये सब दुख दर्द है, पूछिए। और सिर्फ नंगा हमारी लड़कियों को घुमाया नहीं गया, नंगा आग में जला दिया गया जिंदा। और जहां इन अवाम बलवाइयों ने किया, हुकूमत ने रात में जलवा दिया है। हुकूमत रात में हमारी बेटियों को जला दिया गया ताकि कोई इसका जो है यानी जिम्मेदार या कोई गार्जियन ना आ सके, हमारे पे आँच न उठा सके। ये हाल है इस मुल्क के अंदर। हमारी बच्चियां स्कूल जाएंगी, वापस नहीं आ सकती, अब ज़हन में रख लें। अगर वापस आएंगे तो अल्लाह का एहसान अदा कीजिए। और इसी रोशनी के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को याद रखिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम मुसलमान है ना, फरमाया, एक मिनट तो आज हिंदुस्तान का हालत ये है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि हमारा बच्चा जब सुबह निकलेगा तो मुसलमान होगा और शाम आएगा तो ईमान छीन चुका हुआ होगा। शाम में हमारा बच्चा मुसलमान होगा, सुबह होगा काफिर हो चुका हुआ होगा। ऐसे मौके के अंदर अभी जिन साहब का फोन आया था, उन्होंने यही पूछा कि आपने नाम रखा, क्या रखा, कैसे? नाम भी इन्हीं से पूछ के रखा। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी जिन साहब का फोन आया, हमारे शेख है, हम लोग सदारत के लिए लड़ते हैं ना भाई, इस जामिया के सदर वही है। देखा होगा अपने पिछले साल, और क्या बरकत है ये हमारे सामने बरकत। तो मौजूदा हालात से हम लोग सबक लें, अपने बच्चे बच्चियों पे पर्दा को बिल्कुल लाजिम करें। गेट से बाहर निकले नकाब टंगा होनी चाहिए, माँ निकले नकाब टंगा होना चाहिए। शहर में होता है ना, घर से बाहर निकलती नकाब, एक एक बच्चे को दो दो चार चार नकाब होता है, पता है कि नहीं? तो इंशाल्लाह इसका हम लोग ख्याल करेंगे। अरे आप लोग बोलिए भाई, यहाँ पे चुप रहने से हमारी इज्जत बढ़ेगी नहीं, आप बोलने से घटेगी नहीं। यहाँ बोलिए, सारी दुनिया तो बोला है, चुप करा ही रही है। हम लोग भी जिस हालत के अंदर जी रहे हैं, हालात अच्छे नहीं कि नहीं कहा जा सकता ये मदरसा स्कूल कब तक रहेगा, कब तक रहेगा ये नहीं कहा जा सकता है। जो वक्त है गनीमत कर लीजिए। तो इंशाल्लाह हम घर जा करके 2-3 बार जो भी चीज़ है, जो भी आपके दिल में है, कुछ ना कुछ अच्छाई समझ कर इंतखाब किया होगा। दूसरा, वक्त पे बच्चों की फीस की अदायगी होगी जिसकी आखिरी तारीख 5 हो। तीसरा, हॉस्टल का इंतजाम हुआ है लड़कों के लिए, जो हम कर रहे हैं, इसमें भी कोई कमी कोताही आएगी आप बताते रहेंगे। चौथा, राब्ता करने के लिए, छुट्टी का हो, बीमार का हो, जो भी राब्ता हो, आप डायरेक्ट हमसे राब्ता करें, ठीक है? हमसे राब्ता करने के बाद अगर कभी खुदा न खास्ता कॉल नहीं उठा सका, आप रिकॉर्डिंग डाल दीजिए। उससे ज़्यादा मजबूरी हो तो हमारे साथ का भी नंबर है, प्लस एक हम एक नंबर स्पेशली मदरसे में देने जा रहे हैं, या नहीं? 5वां, आपने क्या दिया इस जामिया को, ये आप गौर करना है। ऐसे मेरा इरादा है, अगर आप लोग का साथ रहेगा तो बरसात से पहले पहले बुनियाद डालने का इरादा है। अगर इंशाअल्लाह ये बुनियाद बरसात से पहले नहीं डल सका तो फिर ये नवंबर-दिसंबर में चला जाएगा। और आपको कितनी मदद करनी है ये आपको मालूम है, लेकिन उसमें भी 8-10 लोग हैं, वो 1000 वाला मदद नहीं कीजिएगा, उससे मदद हम ले लेंगे। हाँ, बहरकैफ आगे आपके बच्चियों का दाखिला हम स्कूल में कराने जा रहे हैं, बच्चों का कराने जा रहे हैं। स्कूल की मुकम्मल तालीम आपके बच्चों को मिल रही है, इसलिए आप सरकारी प्राइवेट दाएं बाएं के चक्कर में न पड़ें। अगर आप पढ़ते हैं, आपका मिजाज है, पढ़ाई के दरमियान हम बच्चों को छुट्टी स्कूल के नाम पर कभी नहीं देंगे, ठीक है?
लोगों को लगता है सरकारी स्कूल, तो मैं सरकारी स्कूल का कर दिया। आज ये मदरसा नया है, मदरसा रजिस्टर्ड हो चुका है। आने वाला दिन जो होगा अभी 6 महीना साल भर के अंदर 8वीं की टीसी इसी जामियातुल मोहसिनात से काट के दूंगा। और अगर कोई माँ बाप जिद पे आ जाए तो 2016 के नोटबंदी में हम लोगों ने मधुबनी जिला का सबसे पहला इस्लामिक स्कूल अल-किताब पब्लिक स्कूल बनाया था। इसमें अथोराइज है हमारे पास, उसमें भी मैं अपने मोहर से टीसी काट के दे सकता हूँ, जिसका मैं फाउंडर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और ये मधुबनी जिला का भी पहला इदारा था इस्लामिक, जिसमें गैर मुस्लिम कोई बच्चा नहीं। और लोगों ने डॉक्टर फैयाज साहब IPS DPS और रीजनल को छोड़ के मुसलमानों का बच्चा है, जिसमें क्लिफ वगैरह वाले के बच्चे आए थे। बहरकैफ जो लॉकडाउन की नज़र हुआ, दोबारा खोला, फिर नज़र हुआ, आज भी फिर वो किसी पोजीशन पे स्कूल नहीं। कोचिंग नुमा शाहीन एकेडमी का ब्रांच हमारे उस अल-किताब पब्लिक स्कूल में इस वक्त चल रहा है, जो मैं कर सकता हूँ। तो इसीलिए आप स्कूल की कोई फिक्र न करें। बहुत सारे लोग, अभी हमारे गांव का वाकया था, 3 बच्चों का नाम हुआ, उसको लोग गड़बड़ा देते हैं। अरे आपका बच्चा मदरसे में जाएगा, स्कूल छोड़ जाएगा, नाम कटा लिया। तो मैं नाम काटने के लिए मैं बैठा हुआ हूँ, हमारी मिस यहाँ मौजूद है। एक बात और सुन लीजिए जो बीच में है, आ गई है, याद नहीं था, ये ज़रूरी है।